Indeed, we can't skip this series and we can't escape from this series. This is 30 days challenge for you have to do at any cost, and today is day second. Okay. Hello guys. Welcome back once again my YouTube channel English Journey with you, and today I come here only solve your problem, only just clarify you. I told you in previous video I start a series, and this series will be going for 30 days. Okay, and in this series I just want to improve speaking skill. It's just like a speaking course. Okay, and in for 7 days I just want to tell you, firstly we cover all translation. When we perfect in translation, after that we will go on speaking part. Okay, and first 3 days we translate Hindi and to English to Hindi. Okay, and when we understand all the thing very easily, and after that we will only read English language. Okay, for 4 days. Okay, that time we will be able understand this language very easily. That's why I start this series from like translation Hindi to English. Okay, and no need to worry about this because they are also mentioned English language also, and you can easily learn this. And after 3 days put only English language, and because after watching 3 video you will be able to understand this English language. Okay, because this video only for beginner, who's very beginner, they have no knowledge about how to read, how to speak, but they want to speak in English. That's why I start, because there are a lot of channel they teach you very well, because I'm not a teacher, I'm just give you my experience while learning. Because those very beginner, those they have no knowledge about English and they want to speak in English, so that's why firstly they have to need to improve translation. After complete translation, and they will be able translate very easily. That time they will understand all thing very easily, and show your energy and enthusiasm. You have no need to worry about this, and emphasize your practice and do hard work. It's my promise to you, you will be able after 30 days to improve your speaking skill. And this series is going very helpful and very interesting for you to improve your speaking skill. So without further any delay, let's get started. And haven't subscribed my channel, firstly subscribe my channel and watch this entire video till end, because you have to need understand all the things. So that's why watch the entire video till end. Okay, and press the bell icon to get my new video daily. Okay, so let's get started. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला सेंटेंस क्या लिखा है। पहला लिखा है, उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और सारी इमेज डिलीट हो गई। तो रंगे हाथों पकड़ लिया वो काम फिनिश हो गया है, तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट ही यूज़ करेंगे। और सारी इमेज डिलीट हो गई मतलब कि काम कंप्लीट हो गया। जब काम कंप्लीट होता है तो हम वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ओके, ही कॉट मी, कैच, कॉट, कैच की जो सेकेंड फॉर्म है वो कॉट है। ही कॉट मी रेड हैंडेड एक फ्रेजल वर्ब है। एंड ऑल द इमेजेस आर डिलीटेड। जो डिलीटेड मीन्स वो काम कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, तो ऑल इमेजेस आर डिलीटेड। ओके फ्रेंड्स, सो इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आपको जैसे इंग्लिश नहीं बनानी आ रही है, अपनी हिंदी से इंग्लिश नहीं बनानी आ रही है, तो आप इससे पहले इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए और अपने आप से बनाने की कोशिश कीजिए। हिंदी से इंग्लिश लाइन को अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए। सेंटेंस जब आप इजीली बना पाओगे, हर एक हिंदी लाइन को देख के आप जब ईजिली इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाओगे, दैट टाइम यू विल बी परफेक्ट। ओके, उस टाइम आप परफेक्ट बन पाओगे, बिकॉज आपका जो माइंड है वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, हर सेंटेंस स्ट्रक्चर को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा। ओके, और जब तक आप ऐसे नहीं जोड़ पाओगे तो आप इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो ये सब जब आपको ट्रांसलेट अच्छे से करना आ जाएगा तो एक स्टेप आपका इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ बढ़ जाएगा।
Okay friends, someone my friends told me we are not able to understand Hindi language. Okay friends, if you are not able to understand Hindi language, so you can easily English language, they are also mention English language, you can easily read English language and after that try to understand this thing. Okay, and this is not very big deal because this is a series and I will put only for 3 days this series, and after that I will put only English subtitle. Okay, because before reading English subtitle, so you have to need firstly understand all thing. Okay, नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे तुम्हारे बहानों में कोई दिलचस्पी नहीं है. सो दिलचस्पी नहीं है, इट मीन्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्टेड. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर एक्सक्यूज़. ओके, इन योर एक्सक्यूज़. तो देखिए इसमें हमने इंटरेस्टेड क्यों लगाया, हमने आई एम लिखा है, नोट लिखा है, पर हमने इसमें आई एन जी नहीं लगाया. तो फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है जब कोई चीज़ कंटिन्यू चल रही है और जिसमें आई एम है तो हम उसमें आई एन जी लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है. कई बार हम इनमें पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं और यह है एक रूल है, 3PS है कि जिसमें हम आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वी की थर्ड फॉर्म ही लगती है इनमें. तो इन योर एक्सक्यूज़. ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर एक्सक्यूज़. ओके, ये आप पहले हिंदी को लाइन को पढ़िए और फिर पोज करके इंग्लिश को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए. जब आप इन सारी लाइनों को बार बार बना के देखोगे और बार बार वॉच करोगे और सभी लाइनों को आप फ्रिक्वेंटली बना पा रहे हो तो आप अच्छे जा रहे हो. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है आई शुड फायर you after this. Okay, if you are not able to read Hindi language, so only read English language and try to understand this thing. Okay, इसके बाद मुझे तुम्हें काम से निकाल देना चाहिए. तो निकाल देना चाहिए, तो ये बात हो रही है कि वो चाह रही है आई शुड, इसमें चाहिए में हम आई शुड करेंगे. आई शुड फायर यू आफ्टर दिस. ओके, मीन्स ये भी बोल सकते हैं कि आई शुड आउट, आई शुड लीव यू आफ्टर दिस. ओके, आई शुड एग्जिट, आई शुड आउट, लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है गिव दिस गर्ल एन अनदर चांस. इस लड़की को एक मौका और दो. मौका होता है उसको हम चांस बोलते हैं, ये सबको पता है, आप लोगों को भी पता होगा. गिव दिस गर्ल, इस लड़की को, गिव दिस गर्ल, यह लड़की है, इस लड़की को. एन इज आर्टिकल एंड देयर इज अ वोवल, दैट्स वाई वी ऐड हियर एन before vowel we add n. Okay, and consonant before consonant we add a. Okay, you know very well. Give this girl an another chance, एक मौका और दीजिए. ओके, नेक्स्ट है ओ मिस्टर क्रेन, आप भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं. ओ मिस्टर क्रेन यू आर हियर टू भी, इट मीन्स तुम भी, आप भी. इसमें हम कोई भी होता है, यू आर, यू टू मीन्स तुम भी, यू आर हियर टू. ओके, आगे ये कहता है नैन्सी मेरी अच्छी दोस्त है. तो आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए विदाउट वॉचिंग इंग्लिश सबटाइटल. फर्स्टली ट्राई टू मेक ऑन बाय ओन. ओके, नैन्सी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. ओके, मेरी अच्छी दोस्त है, तो आप नैन्सी इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी, इट मीन्स ही इज़ माई गुड फ्रेंड एंड मेरी अच्छी दोस्त है, इसमें हम माइन का यूज़ करेंगे. नैन्सी इज़ माई गुड फ्रेंड. ओके, तो वो सब चाहे मेरी तस्वीर ले सकती है, तो वो जब चाहे मेरी तस्वीर ले सकती है, क्योंकि वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, वो जब चाहे मेरी तस्वीर ले सकती है. तो ये इस लाइन में कह रहा है कि वो जब चाहे मेरी तस्वीर ले सकती है, ले सकती हैं मतलब कि कैन. सो सी कैन टेक पिक्चर, लेना, कोई भी चीज़ लेना तो टेक हो गया, और सकती से मतलब हो गया कैन. ओके, सो सी कैन टेक पिक्चर ऑफ मी वेन एवर, जब भी वो चाहे, मतलब कि वेन एवर जब चाहें. शी वॉन्ट्स,
चाहे मतलब जब के लिए whenever यूज़ करेंगे, और जब वो चाहे मतलब गर्ल्स है वो चाहे तो सी इज़ अ सिंगुलर, दैट्स वाई वी पुट हियर एस. ओके, ऑलवेज सिंगुलर we use s or es in present indefinite tense. Okay, so she can take picture of me whenever she wants. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है नहीं हमारा इरादा आपको परेशान करने का बिल्कुल नहीं था. ओके, सो इसमें क्या करिए, हमारा इरादा, इरादा से मतलब क्या होता है, इंटेंशन भी होता है, पर इट डजेंट मीन बोल देते हैं ना, इट डजेंट मीन, इट डोंट मीन, इसका यह मतलब नहीं था, इट डजेंट मीन इसका यह मतलब नहीं था. तो इसने कहा कि हमारा इरादा नहीं था का मतलब है पास्ट में जा रही है. नो वी डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू एट ऑल. आपको बिल्कुल, एट ऑल मतलब कि आपको बिल्कुल भी हमें परेशान करने का और आपको डिस्टर्ब करने का इरादा नहीं था. ओके, सो नो वी डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू एट ऑल. ओके, तो आगे लिखा है कोई इतना झूठ कैसे हो सकता है. कोई इतना झूठा से मतलब लायर कैसे हो सकता है. हाउ कैन समवन, कोई के लिए हम यहाँ पे समवन यूज़ करेंगे, और इतना कैसे, समवन बी सच अ लायर. सो कोई इतना झूठा कैसे हो सकता है. हाउ कैन मतलब कि हो सकता है, ऐसे कैसे. समवन कोई, बी सच, इतना, सच मतलब इतना झूठा, सच अ लायर इतना झूठा. हाउ कैन समवन बी सच अ लायर. इनको बनाना बहुत आसान है, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आप इजीली इनको बना सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर, मुझे अपने बच्चों के लिए आपकी तस्वीर चाहिए थी. तो चाहिए थी, तो इसमें एक तो देखिए पहले हमने किया था कि तुम्हें यह करना चाहिए था, यू शुड. ओके, और जब हमें कोई चीज़ चाहिए तो आई वॉन्टेड, जैसे कि शुड एक अलग चीज़ है, और जब हमें कोई चीज़ की हम इच्छा कर रहे हैं वो उसके लिए हम वांटेड यूज़ करेंगे. चाहिए थी में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट है, और इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे. वी यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई वॉन्टेड योर पिक्चर फॉर, आई वॉन्टेड योर पिक्चर. ओके, मुझे चाहिए थी. जब बड़े सेंटेंस होते हैं हम उनको नहीं बना पाते हैं तो हम उनको पहले लास्ट से बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर फर्स्ट में लाके उनको छोड़ देंगे. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, जब उन्हें पता चला कि आप यहाँ हैं. व्हेन दे गॉट टू नो दैट यू आर हियर. ओके, जब उन्हें पता चला मतलब चला, और वो बात पास्ट की हो गई क्योंकि आ ए ई जो है हम पास्ट में यूज़ करते हैं. व्हेन दे गो टू नो, गेट की जो सेकंड फॉर्म है वो गॉट है. व्हेन दे उन्हें, गॉट टू नो पता चला, दैट यू आर हियर कि तुम यहाँ पर हो. ओके फ्रेंड्स, देखो ये कितना देखने में आसान लग रहा है, पर आप इसको बनाने में थोड़ा कंफ्यूज हो गए. जब उन्हें पता चला, आप सोचोगे क्या लिखना मुझे, व्हेन दे नो, बट यहाँ पे गॉट भी लगेगा. जब कोई काम हम किसी के द्वारा पता चलता है, किसी से कुछ करवा रहे होते हैं या कुछ रिसीव होता है या फिर हमने कुछ ख़रीदा होता है तो उसमें हम गेट यूज़ करते हैं. व्हेन दे गॉट टू नो मतलब नो का मतलब पता चलना है, बट कैसे इस सिचुएशन को हम और अच्छे से बना सकते हैं. तो व्हेन दे गॉट टू नो दैट यू आर हियर कि तुम यहाँ पर हैं, कि आप यहाँ पर हो. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, वो लगातार मुझसे आपकी तस्वीर मांग रहे हैं. देखो मांग रहे हैं, ये हमारी, पहले आप सेंस को समझो कि सेंस कहाँ पे जा रही है. यहाँ पे सेंस किसकी आ रही है, यहाँ पे सेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी की आ रही है. कॉन्टिन्यूटी मतलब मांग रहे हैं, तो वो क्या मांग रहे हैं, तस्वीर मांग रहे हैं. और क्या कर रहे हैं, लगातार मांग रहे हैं. तो दे हैव बीन कॉन्टीन्यूसली आस्किंग. जब कॉन्टीन्यूटी की है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूटी है, पर जब टाइम की बात आ रही है कि लगातार मांग रहे हैं, सुबह से मांग रहे हैं, काफ़ी देर से मांग रहे हैं, दोपहर से मांग रहे हैं, इवनिंग से मांग रहे हैं, तब हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस यूज़ करेंगे. ओके, सो दे हैव बीन कॉन्टीन्यूसली आस्किंग मी योर पिक्चर. ओके, सो यहाँ पर हमने हैव बीन लगाया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, और आईएनजी लगाया
और इसमें कॉन्टीन्यूसली है क्योंकि वो काफ़ी देर से मांग रहे हैं, तो कॉन्टीन्यूसली आस्किंग मी, मेरे से योर पिक्चर. ओके फ्रेंड्स, and if you like this video, so please subscribe my channel, and thanks for watching. Bye bye, take care.